Hello everyone, I welcome all of you to the class. Today we are going to discuss rectifier. In previous lecture, we discussed Zener diode as voltage stabilizer and we also discussed the need of rectifier. तो हमने पढ़ा that many times we need to convert AC into DC. There are many appliances which work on DC, but हमारे पास जो voltage आती है that is in AC. Okay, so if we want to convert it into DC, then we have some circuits available for us. तो उसमें एक है रेक्टिफायर और दूसरा है फिल्टर। रेक्टिफायर का क्या काम होता है कि वो एसी वोल्टेज को इट कन्वर्ट्स इनटू पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज, ठीक है, जिसमें कि पल्सेटिंग का मतलब फ्लक्चुएटिंग इन विच वी हैव बोथ एसी एंड डीसी कंपोनेंट्स and after that we apply a filter circuit क्या करता है, it blocks the AC components and allows DC components to pass on, ठीक है। So this is the need, whenever we want to convert AC into DC we want some circuit and rectifier is one of them. So the process of converting alternating current to direct current is known as rectification, ठीक है। रेक्टिफाई करना होता है वैसे करेक्ट करना, तो यहाँ पर इट्स जस्ट दैट we are correcting the current. We don't want alternating current, the positive and negative cycles. We want direct current. So this is why we call it rectification. और जो device rectification करता है we call it rectifier. So a device which converts AC into DC is called rectifier. Now the principle of rectifier. Since we are studying the chapter of junction diode और उसमें rectifier introduce किया है, so definitely it has something to do with the junction diode as well. तो इसका principle क्या है? That we know junction diode works only when forward biased, ठीक है? Forward bias situation में it offers very small resistance to the flow of current and it does not conduct when reverse biased, because in that case it offers very large resistance. इसी रूल को रेक्टिफायर यूज करता है। सो दिस फैक्ट मेक्स द जंक्शन डायोड टू वर्क एज रेक्टिफायर, यानी कि एक सिचुएशन में इट विल वर्क एंड इन अनदर सिचुएशन इट विल नॉट वर्क। जंक्शन डायोड विल वर्क व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड एंड इट विल नॉट वर्क व्हेन रिवर्स बायस्ड, और इसी बेसिस पे रेक्टिफायर को डिजाइन किया जाएगा। नाउ लेट्स डिस्कस जंक्शन डायोड एज ए हाफ वेव रेक्टिफायर. Now, the rectifier which converts only one half of AC into DC is called half wave rectifier. ठीक है, हमारे पास जो पूरा साइकिल आता है AC का, ठीक है, इस पूरे को हम complete cycle बोलते हैं, positive and negative combined. So this is a complete cycle of AC and then it keeps on repeating, ठीक है। तो अब जो डिवाइस सिर्फ वन हाफ को कन्वर्ट करे डीसी में, यानी कि इस पूरे साइकिल में, कंप्लीट साइकिल में बस ये फर्स्ट हाफ, तो इसको ये हो गया एक वन हाफ ऑफ द एसी, सिर्फ इसको कन्वर्ट करेगा और इसको नहीं करेगा, देन अगेन it will convert this but it will not convert this into AC, into DC. Okay, so the rectifier which converts only one half of AC into DC, that is called half wave rectifier. अब इसका अगर आप सर्किट देखो, सो हेयर वी हैव दिस प्राइमरी कॉइल P, ठीक है, जिसको कि हमने AC इनपुट सिग्नल दिया है। ऑब्वियसली इट इज कनेक्टेड टू ट्रांसफार्मर, बिकॉज हमने पढ़ा था कि सबसे पहले जो AC वोल्टेज आती है, जो भी इनपुट है, इट इज फेड टू ट्रांसफार्मर, क्योंकि ट्रांसफार्मर अकॉर्डिंग टू नीड उसको स्टेप अप या स्टेप डाउन करेगा, उसकी वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करेगा, ठीक है। सो यहाँ पर ये आपको जो दिख रहा है डॉटेड लाइन से, दिस इज योर ट्रांसफार्मर।
transformer में we have primary coil and secondary coil. So this one is primary coil of transformer and this is the secondary coil of transformer. अब आप देखो कि इनमें ये जो दो लाइंस शो की हैं, that tells that there is mutual induction between the two coils. So mutual induction में हमें पता है कि जो प्राइमरी कॉइल में चेंजेस आएंगे, जो उसकी पोलैरिटी बनेगी, उसके अकॉर्डिंग सेकेंडरी कॉइल में भी पोलैरिटी इंड्यूस हो जाएगी. ठीक है. सो ये जो डबल लाइंस हैं, दिस टेल अस दैट there is going to be mutual induction between the two coils. So now this secondary coil is connected to junction diode. ये होगी पॉजिटिव साइड डायोड की और ये नेगेटिव साइड. ठीक है. और ये पूरा सर्किट बन गया. दिस इज ऑफ कोर्स द लोड, तो जिसको हम रेजिस्टेंस से डिनोट करते हैं RN, और हमें जो आउटपुट मिलेगा दिस वुड बी मेजर्ड अक्रॉस दिस लोड. ओके. So this is the whole setup. Input is fed to transformer. Transformer has both primary and secondary coil. दोनों के बीच में mutual induction होगा and secondary coil is actually connected to this device, to this junction diode. ठीक है. और यहाँ पे जो अरेंजमेंट है इट इज लाइक कि ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है. एंड देन वी हैव दिस लोड अटैच्ड, तो उसको हम ऑब्वियसली लोड रेजिस्टेंस से डिनोट करते हैं. And the output would be taken across this load resistance RL. Now let's see the working. अब हमें ये पता चला कि this is a rectifier which will convert only one half of AC into DC. ठीक है. यानी कि इस पूरे साइकिल में से सिर्फ हाफ को ही कन्वर्ट करेगा, दूसरे हाफ को नहीं. तो अब ये जो साइकिल होता है ये पॉजिटिव होता है एंड दिस इज द नेगेटिव हाफ ऑफ द साइकिल. एक कंप्लीट साइकिल में दोनों ही पार्ट्स होते हैं. तो अब हम बात करते हैं कि जब एसी सिग्नल का सिर्फ पॉजिटिव हाफ पहुंचता है. ठीक है. सो व्हेन पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी इनपुट सिग्नल फ्लोज थ्रू प्राइमरी कॉइल, यानी अल्टीमेटली ये कंप्लीट होगा. ठीक है. ये कंप्लीट साइकिल है, लेकिन सबसे पहले तो पॉजिटिव साइकिल आता है, फिर सारी पोलैरिटी चेंज होती है, फिर नेगेटिव साइकिल चलता है. एसी तो इसी तरह फ्लो करता है. ठीक है. तो जब पॉजिटिव हाफ आता है एसी इनपुट सिग्नल का, तो क्या होगा, दैट विल फ्लो थ्रू द प्राइमरी कॉइल, और बिकॉज वी हैव अ सेकेंडरी कॉइल और इनके बीच में म्यूचुअल इंडक्शन होगा, सो जो भी करंट फ्लो कर रहा है प्राइमरी कॉइल में, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सेकेंडरी कॉइल में EMF इंड्यूस हो जाएगा. ओके. सो एन इंड्यूस EMF is set up in secondary coil due to mutual induction. ठीक है. अब ये कैसा सेटअप होगा, इसकी डायरेक्शन जो है वो ऐसी है कि अपर एंड जो है इट बिकम्स पॉजिटिव, यानी कि ये साइड जो है ये पॉजिटिव बन गई, एंड लोअर एंड बिकम्स नेगेटिव, यानी ये वाली साइड आपकी नेगेटिव बन गई सेकेंडरी कॉइल. तो ये सब म्यूचुअल इंडक्शन पे डिपेंड किया है. जो भी पोलैरिटी प्राइमरी कॉइल की है, वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट दैट. ठीक है. वी आर ओनली कंसर्न्ड विद व्हाट इज द पोलैरिटी इन द सेकेंडरी कॉइल, बिकॉज सेकेंडरी कॉइल इज एक्चुअली कनेक्टेड विद द डायोड. प्राइमरी तो नहीं डायोड के साथ कनेक्ट, सेकेंडरी इज कनेक्टेड. सो वी आर कंसर्न कि सेकेंडरी में क्या पोलैरिटी रहेगी. तो फर्स्ट केस में हम ये देखते हैं कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल, जो पॉजिटिव साइकिल है, जब वो आता है, तब ऑब्वियसली प्राइमरी में जो भी सिग्नल फ्लो करता है, ड्यू टू दैट जो सेकेंडरी कॉइल में EMF सेटअप होता है ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन, उसकी डायरेक्शन ऐसी है दैट इट्स अपर एंड बिकम्स पॉजिटिव एंड लोअर एंड बिकम्स नेगेटिव. ओके. सो नाउ ये एक तरह से आपका एक वोल्टेज का सोर्स बन गया. ये सेकेंडरी कॉइल इस पूरे सेटअप से डायरेक्टली कनेक्टेड तो है नहीं. ठीक है.
इसमें इंड्यूस हो रहा है, बट उस इंड्यूस होने से, उस इंडक्शन से इसमें वो वोल्टेज सेटअप हो चुकी है, राइट? क्योंकि ये अब डायोड से कनेक्ट है। तो आप इस पूरे को एज वोल्टेज कंसीडर कर सकते हो। ये जो प्लस माइनस है, ये एक तरह से आपकी वोल्टेज हो गई, ठीक है? आपने एक इनपुट दे दिया टू दिस डायोड। अब ये इनपुट कैसे दिया है कि यू कैन सी दैट दिस पॉजिटिव एंड इज कनेक्टेड टू पी साइड ऑफ डायोड, एंड ऑब्वियसली जो ये नेगेटिव एंड है दैट इज कनेक्टेड टू एन साइड ऑफ डायोड। तो ये कैसी बायसिंग हुई? When positive terminal of battery is connected to P side of the diode and negative terminal is connected to N side of the diode, तो ये कौन सी बायसिंग होती है? This is forward biasing. Okay? तो अब हमने देखा कि since upper end is connected to P region, जो कि दोनों ही पॉजिटिव है, right? And lower end जो कि नेगेटिव है, that is connected to N region. So junction diode is forward biased during पॉजिटिव हाफ ऑफ इनपुट एसी। यानी कि जब उस पूरे एसी का पॉजिटिव हाफ होता है तो आपका जो डायोड है वो फॉरवर्ड बायस्ड हो जाता है। और फॉरवर्ड बायस में हाउ डज इट बिहेव? फॉरवर्ड बायस में इट अलाउज द करंट टू फ्लो एंड इट ऑफर्स वेरी स्मॉल रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस बहुत ही कम होती है टू द फ्लो ऑफ करंट, और करंट नॉर्मली फ्लो करता है। तो इन दैट केस हमने ये शो किया बाय एरोस कि करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू दिस सर्किट, योर डायोड विल कंडक्ट, ठीक है, बिकॉज वो फॉरवर्ड बायस हो चुका है एंड करंट विल फ्लो इन द सर्किट। तो हमें ये करंट दिख रहा है और उस अकॉर्डिंग जो आउटपुट वोल्टेज है दैट विल बी ऑब्टेन्ड अक्रॉस दिस लोड। क्योंकि ऑब्वियसली हमने पढ़ा है, जैसे हमने जीनर डायोड एज वोल्टेज स्टेबलाइजर में पढ़ा कि डायोड कुछ जो आप सोर्स में वोल्टेज प्रोवाइड करते हो वो उसको जितनी चाहिए वो उतनी वोल्टेज ले लेता है। सो देयर इज ऑलवेज सम वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द डायोड, वेदर इट इज सिंपल जंक्शन डायोड और इट इज जीनर डायोड। तो इस डायोड को फंक्शनिंग के लिए जितनी वोल्टेज चाहिए वो लेगा एंड बाकी की जो है दैट विल बी ऑब्टेन्ड अक्रॉस दिस लोड। सो हमने ये देखा कि पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी इनपुट सिग्नल में हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है एंड इट अलाउज करंट टू फ्लो। तो अब हमारे पास जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे बनेगा कि जब तो आपके पास पॉजिटिव हाफ आया तो करंट फ्लो हुआ, ठीक है। तो इनपुट में तो आप ऐसे दोगे ही पॉजिटिव नेगेटिव एंड सो ऑन, बट मेन थिंग है कि हमने देखना कि आउटपुट पे हमें क्या मिल रहा है। तो हमने देखा कि फॉर पॉजिटिव हमें आउटपुट पे ऑब्वियसली वोल्टेज मिल जाएगी। ऑलराइट, ठीक है। सो दिस इज डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेगेटिव हाफ साइकिल, बिकॉज अब नेगेटिव भी तो आएगा। सो हम इसको तो एज डॉटेड शो करते हैं एंड इसको हम शो करते हैं एज कंप्लीट। तो जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगा व्हाट विल हैपन देन? नेगेटिव हाफ साइकिल में जो पोलैरिटी है वो कुछ ऐसी बनती है कि अपर एंड आपके जो सेकेंडरी कॉइल का है वो नेगेटिव हो जाता है और लोअर एंड पॉजिटिव। नाउ इट्स रिटन हियर दैट व्हेन negative half cycle of AC input flows through the primary coil, ठीक है, in that case what happens? So again induced MF is set up across secondary coil। अब again क्योंकि still negative half जा रहा है AC सिग्नल का, तो जो आपका जो भी यहाँ पर आप सिग्नल दे रहे हो चाहे वो नेगेटिव हाफ साइकिल ही है, बट स्टिल सिग्नल तो जा रहा है और प्राइमरी कॉइल में वो सिग्नल फ्लो करेगा। अगेन ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्शन सेकेंडरी कॉइल में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, राइट? लेकिन अब नेगेटिव हाफ साइकिल में वो ईएमएफ ऐसे इंड्यूस होगा कि जो अपर हैंड है सेकेंडरी कॉइल का दैट विल बिकम नेगेटिव
and the lower end will become positive. Obviously polarity तो reverse होगी ही. फर्स्ट केस में पॉजिटिव हाफ साइकिल था, तो अगर उस टाइम अपर एंड पे पॉजिटिव और लोअर पे नेगेटिव बन रहा था, सो नेगेटिव हाफ साइकिल में ऑब्वियसली साइंस वुड रिवर्स, तो तब अपर एंड पे नेगेटिव एंड लोअर एंड पे पॉजिटिव बनेगा. ओके, so here it's written that now the direction of induced EMF is such that upper end of secondary coil becomes negative and lower end becomes positive. तो अब अगर ये हो जाता है, एंड अगेन हम यही देख रहे हैं कि एक तरह से बैटरी है, ठीक है, जिसके दो टर्मिनल्स हैं. तो अब अगर आप नेगेटिव टर्मिनल जंक्शन की पी साइड, डायोड के पी साइड से कनेक्ट करो और पॉजिटिव डायोड की एन साइड, नेगेटिव साइड से कनेक्ट करो, then what would happen? What kind of biasing would it be? This is the case of reverse biasing. When positive terminal of battery is connected to N side of the diode and negative terminal of the battery is connected to P side of the diode, in that case diode is said to be reverse biased, and in reverse biased it does not allow the current to flow क्योंकि उस टाइम पे it offers maximum resistance. ठीक है, so current will not flow. तो अब यहाँ पे लिखा कि now the junction diode is reverse biased and it does not conduct, so we get no output across the load resistance. तो अब अगर ये कंडक्ट ही नहीं करेगा तो ये पूरा सर्किट तो कंप्लीट ना हुआ. ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि इस सर्किट में करंट फ्लो करे, फॉर दैट सर्किट नीड्स टू बी कंप्लीटेड. यहां से तो पूरी वोल्टेज आ रही है, बट अगर यही आपका ऑफ है, एक तरह से इट्स नॉट वर्किंग, तो फिर यहां पर ब्रेक आ गई सर्किट में. कह लो यहां पर आपका सर्किट एक तरह से ब्रेक हो गया, तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो सकता. सो ऑब्वियसली नो करंट विल फ्लो. तो हम ये एरोज नहीं शो करेंगे. नाउ द करंट विल नॉट फ्लो, और आपको यहां पर आउटपुट के अक्रॉस भी कोई करंट नहीं मिलेगा क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है. एंड व्हेन सर्किट इज नॉट कंप्लीट, नो करंट फ्लोस, यानी हमें आउटपुट नहीं मिलेगी. सो दैट्स व्हाई इट्स शोन हियर कि आप देखो कि जब नेगेटिव साइकिल आता है तो यहां पर हमें आउटपुट कुछ भी नहीं मिली, देयर इज नथिंग. फिर नेक्स्ट क्या होगा? फिर अगेन आपका पॉजिटिव साइकिल स्टार्ट होगा. पॉजिटिव साइकिल पे वी विल ऑब्टेन आउटपुट, क्योंकि पॉजिटिव साइकिल के केस में आवर डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड, तो वो कंडक्ट करेगा. फिर अगेन कम्स द नेगेटिव हाफ ऑफ द साइकिल. नेगेटिव हाफ ऑफ द साइकिल में अगेन डायोड विल गेट रिवर्स बायस्ड, इट विल नॉट कंडक्ट, तो फिर से हमें आउटपुट नहीं मिलेगी. ठीक है, तो आप देखो कि पूरे इस पोर्शन में ये जो एक कंप्लीट साइकिल है, वी आर गेटिंग आउटपुट ओनली फॉर हाफ ऑफ इट. ठीक है, हमें बस फर्स्ट हाफ के लिए यानी पॉजिटिव हाफ के लिए आउटपुट मिल रही है और नेगेटिव हाफ के लिए हमें आउटपुट नहीं मिल रही. इसीलिए हम इसे कहते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर, कि ये हाफ वेव को ही रेक्टिफाई कर पाता है, हाफ वेव को ही एसी से डीसी में कन्वर्ट कर पाता है, फुल को नहीं. ठीक है, so since only half of the portion of wave is obtained as output in the form of DC, so that is why we call it half wave rectifier. Easy to understand, right? और यहाँ पर हमने ओमेगा टी की फॉर्म में इनपुट और आउटपुट देखा है, जो हमारा एक्स एक्सिस है दैट इज ओमेगा टी. ठीक है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड टाइम, क्योंकि हम हमेशा फेज रिप्रेजेंट करते हैं whenever current is flowing, so phase change is there with time, so omega t ही हम मोस्टली यूज करते हैं. तो अब इसमें ठीक है, वी आर गेटिंग डीसी आउट ऑफ एसी बट नॉट कंप्लीटली. ठीक है, फुल वेव का हमें पूरा कन्वर्जन नहीं मिल रहा. So that's why we say that it has disadvantages, which is that the output signal is discontinuous. ठीक है, हमें एक टाइम आउटपुट मिल रहा है, फिर नहीं मिल रहा, देन अगेन मिल रहा है, फिर नहीं मिल रहा. यानी कि जब जब पॉजिटिव साइकिल है वी आर गेटिंग द आउटपुट, बट वी आर नॉट गेटिंग एनी आउटपुट फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल. सो इसकी एफिशिएंसी
कम हुई या ज्यादा? ऑब्वियसली कम हुई, बिकॉज जो इनपुट आ रही है ये फुल्ली हमें उसको कन्वर्ट करके नहीं दे पा रहा, सो इट्स एफिशिएंसी स्मॉल। और नेक्स्ट इज कि ये प्योर डीसी नहीं देता, इट गिव्स अस फ्लक्चुएटिंग या पल्सेटिंग डीसी। और पल्सेटिंग डीसी का क्या मतलब है? दैट इट कंटेन एसी कंपोनेंट्स या कुछ रिपल्स, कुछ फ्लक्चुएशन है। सो इट मीन्स अब हमें इसके साथ और किस चीज की जरूरत होगी? फिल्टर, राइट? We studied that normally the rectifier provides us pulsating DC which has both AC and DC components, and for that we need filter which will block AC component and allow DC components to pass. तो इसमें तो फिर साथ में हमें फिल्टर भी लगाना पड़ेगा, सो ये इतना एफिशिएंट नहीं है। तो ये हो गई इसकी डिसएडवांटेजेस। Now, analysis of half wave rectifier. So, there are various factors which determine the half wave rectifier performance. All these are the factors. ठीक है, तो ये एक तरह से आपके पास terms आ गई जो कि किसी भी question के साथ attach होके आ सकती है, and most of the time numericals are also based on these. So, ये सारी अब हमने discuss करनी है, इन सब की आपको definition पता होनी चाहिए। So one is peak inverse voltage, then average or DC value of load current, then DC output voltage, RMS value of current and voltage, rectification efficiency, ripple factor, and ripple regulation. So first is peak inverse voltage. ये peak inverse voltage we have discussed in junction diode case also. तो हमने देखा था कि the maximum voltage that a diode can withstand, यानी वो मैक्सिमम सेफ वोल्टेज विच कैन पास थ्रू डायोड विदाउट डैमेजिंग इट, दैट इज योर पीक इनवर्स वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होती है? जिस पर आपका पीएन जंक्शन डैमेज हो जाता है, ठीक है, बट वो मैक्सिमम एटलीस्ट स्टिल देयर वुड बी सम मैक्सिमम वोल्टेज जहां पर आपका जो पीएन जंक्शन है वो डैमेज नहीं होगा, सो दैट वोल्टेज इज पीक इनवर्स वोल्टेज। ठीक है, द मैक्सिमम सेफ वोल्टेज यू कैन ऐड हियर, ठीक है, क्योंकि the which a diode can withstand when it is reverse biased is known as peak inverse voltage. And also the thing is that the diode should not be subjected to a peak inverse voltage exceeding the rated value to save the diode from getting damaged. हर diode पे as I mentioned before written होता है कि उसकी क्या है safe limit, ठीक है। So if we want that our diode should continue working properly, then we should always keep this in mind that we should not exceed this पीक इनवर्स वोल्टेज। जो भी हम सप्लाई कर रहे हैं, जो उस पर मेंशन है, हम उससे ज्यादा ना लगाएं वोल्टेज। नाउ हियर यू कैन सी अगेन डायग्राम ऑलमोस्ट सेम है। ये आपके पास एसी सोर्स है, दिस इज योर प्राइमरी कॉइल, दिस इज योर सेकेंडरी कॉइल, एंड दिस इज योर पीएन जंक्शन डायोड विच इज कनेक्टेड, और ये आपका है लोड, ठीक है। तो नॉर्मली हम हमेशा जो वोल्टेज आती है वी कंसीडर इट टू बी वी नॉट साइन ओमेगा टी, क्योंकि ये सब हार्मोनिक फंक्शंस हैं, साइन एंड कॉस, सो दैट्स व्हाई वी राइट डाउन इट एज v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो अब हमें पता है कि ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल द डायोड इज रिवर्स बायस। सो रिवर्स बायस है, सो दैट मीन्स नो करंट विल फ्लो थ्रू द लोड रेजिस्टेंस and hence no voltage drop across RL. Hence, the entire input voltage appear across the diode. The peak value of secondary voltage is equal to PIV. Thus, for half wave rectifier, PIV is V naught. So, now we know कि negative half cycle में जो diode है that is reverse biased and definitely it will not conduct. अगर ये current conduct नहीं कर रहा, so no current will flow through the circuit, ठीक है, क्योंकि इसके कारण circuit break है already. तो अगर करंट फ्लो ही नहीं करा तो इस लोड के अक्रॉस भी कोई करंट नहीं होगा। इफ देयर इज नो करंट अक्रॉस द लोड देन देयर विल बी नो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दिस लोड, ठीक है। तो सारी की सारी वोल्टेज कहाँ आ रही है? यहां से अगर वोल्टेज जो मिल रही है वो सारी
अक्रॉस डायोड अवेलेबल है, ठीक है। चाहे डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा बट उसके पास वोल्टेज तो अवेलेबल है, बिकॉज हियर वी हैव द वोल्टेज। इसीलिए वी शुड कीप इन माइंड कि हम कितनी प्रोवाइड कर रहे हैं, कि ऐसा ना हो कि वो इसकी पीक इनवर्स वोल्टेज से एक्सीड कर जाए वैल्यू जो यहाँ अवेलेबल है, ठीक है। सो द पीक वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज इज इक्वल टू पीक इनवर्स वोल्टेज। और हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में यही सेम है दोनों चीजें। द पीक वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज जो यहाँ पर मिल रही है वोल्टेज, उसकी मैक्सिमम वैल्यू दैट इज इक्वल टू पीक इनवर्स वोल्टेज ऑफ द डायोड, क्योंकि वो सारी की सारी यहाँ अवेलेबल होगी, बिकॉज करंट इज नॉट फ्लोइंग, बिकॉज डायोड इज नॉट कंडक्टिंग। नेक्स्ट इज एवरेज और डीसी वैल्यू ऑफ लोड करंट। अब हमने जो करंट है उसको भी कंसीडर किया, इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। हम हमेशा यही फॉर्मूला यूज करते हैं। एंड हेयर दिस ओमेगा टी जो कि एक तरह से आपका फेज रिप्रेजेंट करता है, हेयर इट इज लाइंग बिटवीन 0 टू पाई, बिकॉज हमें पता है कि 0 टू पाई फर्स्ट साइकिल जो पॉजिटिव साइकिल है वी गेट करंट, लेकिन जब नेक्स्ट साइकिल आता है विच इज पाई टू 2 पाई, in that case we don't get any current, ठीक है। so from 0 to pi it is I naught sin omega t, but from pi to 2 pi current is 0। अब हमने एवरेज वैल्यू निकालनी है, तो आई डीसी वैल्यू ऑफ करंट निकालना है। सो फॉर दैट 1/2 पाई वी विल इंटीग्रेट फ्रॉम 0 to 2 पाई, बिकॉज अल्टीमेटली जो कंप्लीट साइकिल है वो आपका 0 से लेके 2 पाई में पूरा साइकिल बनता है, ठीक है। एंड आई डी ओमेगा टी, अब हम डिफ्रेंशिएट या कह लो अब यहाँ इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ओमेगा टी। हमने ओमेगा टी एज सच क्वांटिटी ली है जो कि हमारा फेज को रिप्रेजेंट कर रही है, सो वी विल इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू दिस, ठीक है। तो अब आपके पास आई नॉट साइन ओमेगा टी डी ऑफ ओमेगा टी है। हम स्प्लिट कर देंगे बिकॉज हमारे पास लिमिट्स है 0 टू पाई एंड देन पाई टू 2 पाई। So we will write first for 0 to pi, then plus pi to 2 pi. We know current is 0 from pi to 2 pi, तो ये तो 0 value है, this would give us 0. And here, since we are integrating with respect to omega t, I naught constant है, तो simply sin omega t का we will get minus cos omega t. Okay? अगर यहाँ पर सिर्फ dt होता तो हमारा क्या आंसर आता? It would have been I naught और माइनस साइन माइनस आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, अगर हम इंटीग्रेट करते विद रिस्पेक्ट टू टी, बट हेयर वी आर इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी, तो ओमेगा नहीं आएगा, ओके, देयर विल नॉट बी एनी ओमेगा। तो अगर हमारे पास होता 0 टू पाई आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी, in that case the answer would have been minus I naught cos omega t एंड ओमेगा 0 टू पाई, यानी कि हमारे पास आता माइनस आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी अगर डी टी के विद रिस्पेक्ट इंटीग्रेशन होती, बट हेयर हम डी ओमेगा टी के विद रिस्पेक्ट कर रहे हैं, सो यहाँ पर कोई एक्स्ट्रा ओमेगा टर्म नहीं आएगी। एंड नाउ हेयर टेक दिस माइनस साइन आउटसाइड, नाउ वी हैव टू सब्स्टिट्यूट, तो कॉस पाई क्या होता है? कॉस पाई इज -1 एंड कॉस 0 इज 1, ओके। तो ये आपका बन गया, this is minus I naught upon 2 pi minus 1 minus 1. So that would give you minus I naught upon 2 pi minus 2. So the value is I naught upon pi. So on solving we get IDC is equal to I naught upon pi. ठीक है, अब I naught is equal to V naught RL plus RF, ये हमने लिखा था। Zener diode as voltage stabilizer के केस में we wrote that our I, which is basically the current across load, that is equal to VI, that means source voltage, upon series resistance plus resistance of the load resistance, ठीक है, ये फॉर्मूला था। तो अब अगर हमने आउटपुट
यानी ये क्या है, बेसिकली आपके पास जो करंट थ्रू लोड जा रहा है दैट इज योर आउटपुट करंट, ठीक है। सो अगर हम उसे आई नॉट लिखते हैं, सो दैट वुड डिपेंड ऑन वी नॉट, यानी अल्टीमेटली जो भी आपको आउटपुट में वोल्टेज मिल रही है अपॉन दिस थिंग। Here this V naught is peak value of secondary voltage, जो वोल्टेज यहाँ पर डायोड को प्रोवाइड हो रही है, ठीक है, उसी की बात है यहाँ पे। द पीक वैल्यू ऑफ सेकेंडरी वोल्टेज, जो वोल्टेज आपका यहाँ पर सेकेंडरी कॉइल में है उसी की बात हो रही है, दैट वी आर डिनोटिंग विद V नॉट। ओके, सो इसी फॉर्मूले को देखकर वी कैन राइट डाउन आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर एल प्लस आर एफ। अब आर एल विल ऑलवेज बी देयर, लोड रेजिस्टेंस तो होगा ही, बट यहाँ पर जो सीरीज रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि वट एवर रेजिस्टेंस इज देयर दैट इज ड्यू टू डायोड, चाहे वो फॉरवर्ड बायस्ड है बट स्टिल देयर वुड बी सम रेजिस्टेंस, चाहे वो स्मॉल ही है, ठीक है। सो जो भी सीरीज रेजिस्टेंस होती है वो एक्चुअली में जो कंपोनेंट हम अटैच करते हैं उसी की रेजिस्टेंस होती है। वहां पर हम जनरल बता रहे थे, यहाँ पे वी हैव शोन दैट देयर इज दिस आर एफ विच इज रेजिस्टेंस ऑफ डायोड व्हेन फॉरवर्ड बायस्ड। तो अब अगर ये आई नॉट है एंड वी नो दैट आई डीसी करंट इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन पाई। आई नॉट क्या है, आई नॉट हमने सिर्फ उसका एम्पलीट्यूड लिया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो जाता है करंट का, ठीक है, दैट इज द एम्पलीट्यूड। अब अगर हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर दें आई नॉट की वैल्यू, सो वी गेट वी नॉट अपॉन पाई आर एल प्लस आर एफ। एंड सिंस इट इज फॉरवर्ड बायस, तो फॉरवर्ड बायस के केस में जो डायोड है वो बहुत ही कम रेजिस्टेंस देता है, सो इन दैट केस दिस आर एल वुड बी मच ग्रेटर देन द रेजिस्टेंस ऑफ डायोड, क्योंकि फॉरवर्ड बायस के केस में करंट फ्लो करता है एंड रेजिस्टेंस बहुत ही कम होती है। सो इफ समथिंग इज वेरी मच ग्रेटर देन द अदर क्वांटिटी, सो वी कैन इग्नोर दैट अदर क्वांटिटी, तो हम आर एफ को इग्नोर कर सकते हैं एंड वी हैव वी नॉट अपॉन पाई आर एल। सिमिलरली डीसी आउटपुट वोल्टेज, ये था आपका डीसी करंट। अब हम आउटपुट वोल्टेज को स्टडी करते हैं, तो आउटपुट कहाँ मिलेगी, अक्रॉस द लोड, एंड वी नो वोल्टेज इज करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो हमने किया VDC इज इक्वल टू IDC इंटू RL, बट IDC इज व्हाट, ये भी हमने सॉल्व किया, दैट इज V नॉट अपॉन पाई RL प्लस RF। तो आपका VDC क्या हो गया, वी विल मल्टीप्लाई RL विद दिस वैल्यू, सो दैट इज V नॉट RL अपॉन पाई RL प्लस RF। अब हम क्या कर सकते हैं, यहां पर डिवाइडिंग न्यूमरेटर and denominator with RL, तो क्या होगा, V नॉट RL अपॉन RL अपॉन पाई, एंड यहां पर भी RL अपॉन RL प्लस RF अपॉन RL। तुमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों RL से डिवाइड कर दिए, तो RL कैंसल आउट, so in the numerator we have V naught, denominator में we will get pi 1 plus RF upon RL. Again we will write कि load resistance is much greater than the resistance of diode when forward biased, तो हम RF को इग्नोर कर देंगे। अगर आप RF को इग्नोर कर दोगे बिकॉज RL is much bigger और RF बहुत छोटा है एज कंपेयर टू RL, तो अगर ऊपर स्मॉलर क्वांटिटी हो और नीचे मच बिगर क्वांटिटी हो और हम ऐसे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास वैल्यू कैसी आएगी, वुड इट बी ग्रेटर और स्मॉलर। एक स्मॉलर नंबर को अगर आप एक बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करते हो, सो यू विल गेट वेरी वेरी स्मॉल नंबर एज आंसर, ठीक है। तो यहां पर जो आर एफ अपॉन आर एल जो आएगा ये बहुत ही स्मॉल होगा, ठीक है। तो अब अगर हम इस चीज को देख रहे हैं, तो हम आर एफ अपॉन आर एल को टोटली इग्नोर कर देंगे एंड वी विल हैव वी नॉट अपॉन पाई, ओके। सो हमने ये दोनों निकाल लिए, आईडीसी भी
एंड VDCB। ठीक है, सो हमारे पास जो ये फैक्टर्स हैं, हमने पीक इनवर्स वोल्टेज स्टडी कर लिया, हमने एवरेज और डीसी वैल्यू ऑफ लोड करंट देख लिया, जो कि कितना आया, आई नॉट अपॉन पाई। ठीक है, आई डी सी इज आई नॉट अपॉन पाई। और डीसी आउटपुट वोल्टेज वो भी कितनी आ गई, वी नॉट अपॉन पाई। तो ये दोनों की सेम वैल्यूज ही ऑलमोस्ट। ऑल वी हैव टू डू इज रिप्लेस आई नॉट बाय वी नॉट। तो हमने ये 3 फैक्टर निकाल लिए हैं, बाकी के 4 factors we will discuss in the next class. Okay, so that's all for today. Thank you.